کسی پہ بھی اعتبار نہ کریں، چاہے وہ آپ کا سگا بہن بھائی کیوں نہ ہو، اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں، ان کو خود پروٹیکٹ کریں۔ اب تو ان کا کمپیریزن یہ ہے کہ وہ کچے کے علاقے میں اور ایسی گاڑی مل جائے کہ بارش اور پھنس جائے، یار وہ کس ماحول میں انہوں نے رہنا، گاڑی ان کو وہی چاہیے نا کہ اگر کیسے بھی حالات ہوں وہ آ سکے وہاں سے۔ اور کسی نے ایک بندہ ہے جس نے بچے کو بھی آگے بائک پہ ٹینکی پہ بٹھایا، چھوٹے بچے کو، اور وہ جا رہا رستے میں خاتون کو اس نے ہراس کیا۔ تو مطلب بچپن میں پڑھتے تھے نا معاشرتی علوم، جی وہ کیا تھا؟ ہمیں تو اس میں بھی صحیح نہیں سکھایا گیا، ہمیں تو اس میں بھی نہیں بتایا گیا کہ معاشرے میں رہنا کیسے۔ بالکل سوسائٹی کی پتیاں جو مرجائی ہوئی پتیاں وہ کلیکٹ کی گئی وہاں سے۔ اب ایسے بندے کو بھی آپ نے عدالتی ٹرائل 2-4 سال چلانا ہے کہ چھوٹی عدالت پھر بڑی عدالت پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی، مطلب کیا؟ السلام علیکم، پلانٹ فن کے ساتھ میں آپ کا دوست ہوسٹ محمد اصغر، اور میرے ساتھ ہے مس گل، اور ہم دونوں کو جوائن کیا ہے علی حیدر۔ کیسے ہیں سر آپ؟ شکر اللہ کا۔ میڈم آپ سنائیں۔ الحمدللہ فرسٹ کلاس۔ الحمدللہ فرسٹ کلاس۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل ہماری جو مارننگ ہوئی، آفس مارننگ، جی وہ کس خبر کے ساتھ ہوئی کہ اٹک میں ایک بچوں کی وین کے اوپر حملہ ہو گیا، جی 2 معصوم بچے جو ہے وہ شہادت حاصل آگے اور 5 بچے انجرڈ ہو گئے۔ آج ہمارا آفس مارننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی کہ رحیم یار خان میں کچے کے علاقے میں ہمارے پولیس والے بھائی جو ہیں ان کے اوپر راکٹ لانچر فائر کیا گیا، جی ڈاکوں کی طرف سے، کچے کے ڈاکوں کی طرف سے، اور وہ اس میں ہمارے کچھ جوان 12 شہید ہو چکے ہیں، شہید ہو گئے اللہ، اور زخمی بھی ہوئے ہوں گے ظاہر ہے۔ اور جب ہم لنچ بریک پہ آتے ہیں، لنچ بریک تو لنچ بریک میں جب ہم ٹی وی کے آگے جاتے ہیں تو ہماری نظر خبر میں پڑتی ہے کہ لاہور کے ایریا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اپنے دوست کی بیٹی کو کڈنیپ کیا، اس سے جو ہے وہ تاوان مانگا، اور پھر اسی دن اگلے دن صبح میں مارننگ میں اس بچی کو جو ہے وہ اس نے مرڈر کر دیا، اور وہ پھول سی ننھی سی بچی جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے اللہ کے پاس چلی گئی۔ اب وہ جا کے کیا بتاتی ہے، یہ اس بچی کے اوپر منحصر ہے، دنیا میں تو وہ بول بھی نہیں سکی، کھل بھی نہیں سکی۔ علی بھائی یہ جو کرائم ڈیلی ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے چھوٹے بچے جو اس ملک میں پروان چڑھ رہے ہیں، جب وہ ڈیلی ایسی کرائم کی خبریں سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہوگا؟ بہت برا، بہت برا ان کی صحت پہ پڑتا ہوگا۔ وہ تو خیر اتنا جلدی جو ہے سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ ہے، لیکن جو ان کے پیرنٹس ہیں یا جو واقعی بلونگنگ کرتے ہیں اور جو صحیح طرح سے ان کو پتہ نہیں کیا خوف میں رہتے ہوں گے ہر وقت ہی، اور کہ اسکول گئے اور واپس کیسے آئیں گے، ٹیوشن گئے تو کیا ہوگا، وہ خوف ظاہر ہے ان کے ذہنوں میں ضرور آ چکا ہے، اور سسٹم ہے ہی نہیں کوئی کہ کس پہ اعتبار کریں، مطلب دوست پہ۔ اور وہ جب ظاہر وہ خبر بتا رہے ساری دیکھ رہے تھے کہ اس نے لڑکی کے بچی کے فادر نے اس کو لون دیا ہوا تھا، وہ لون لوٹانے کے لیے اس نے اس کو کڈنیپ کر لیا اور وہ واپس کر، یعنی اسی سے لے کے جی کسی کی نیکی اس کے اپنے آگے ایسے آئی کہ وہ اس کی بچی کی جان، تو اس طرح کا سسٹم ہے۔ تو اب کس پہ اعتبار کرتے ہیں، سسٹم ایسا ہی ہے، شہر ایسے ہی ہیں۔ ابھی بلکہ کل پرسوں ایک اور ویڈیو ہے جس کے اندر 10 دن سے اس بندے نے جو ہے وہ بینرز لگائے ہوئے تھے کہ میری بچی جو ہے وہ لاپتہ، جی، کہ کسی نے ایک بندہ ہے جس نے بچے کو بھی آگے بائک پہ ٹینکی پہ بٹھایا، چھوٹے بچے کو، اور وہ جا رہا رستے میں خاتون کو اس نے ہراس کیا۔ تو مطلب پہلے ورنہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بچہ یا خاتون ہے اس کے ساتھ تو نہیں ایسا کچھ ہوگا، لیکن وہ شرم حیا بھی جو ہے اس وقت مارکیٹ میں نہیں ہے، بہت زیادہ، بہت برے حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ علی بھائی یہ جس میں کیس میں مجرم مل گیا، مجرم نے جا کر نشاندہی کی جہاں سے وہ پھول کی وہ جو پتیاں تھی، وہ پھول کی پتیاں، میں ان کو کہوں گا، بچی کیا چھوٹی سی 5 سال بچی کیا ہوتی، وہ پھول کی پتیاں جو مرجائی ہوئی پتیاں وہ کلیکٹ کی گئی وہاں سے۔ اب ایسے بندے کو بھی آپ نے عدالتی ٹرائل 2-4 سال چلانا ہے کہ چھوٹی عدالت پھر بڑی عدالت پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی، مطلب کیا ایسا کیا پروسیس ہے یار؟ ڈائریکٹ مار دینا چاہیے اور چوراہے پہ لٹکانا چاہیے اس کو، ایسے نہیں، پروسیس تو جو لاگ ہے اس کو تو فالو کرنا ہی پڑے گا، اور طریقہ کار ایسے ہی ہے، اس کو پکڑ لیا، اس نے کنفیس کر لیا ہے، طریقہ ان معاملات میں چینج کرنا چاہیے سر۔ ہاں اسپیڈی ٹرائل ہو سکتا ہے، وہ بات صحیح ہے، اسپیڈی ٹرائل سر، یہ چینج کرنا چاہیے۔ جب ثبوت مل گیا ہر چیز کا، اب چھوڑ دیں باقی سارے کاموں کو، آپ اس کا کیس مقرر کریں، کل والی عدالت جو ہے اس کا کیس فائنلائز کرے، پرسوں دوسری، ترسوں دوسری، 1 ہفتے کے اندر اسی ایریا کے ایک اسپیشل جگہ کو ڈیسائیڈ کیا جائے، اس کو لٹکا دیا جائے۔
बात दुरुस्त है, इस तरह ज़ाहिर है डेटरेंस भी कायम हो जाएगी और लोगों को ये भी होगा, खौफ ज़ाहिर है वो एक फिर इंसानी जहन में रहेगा ना कि यार अगर होगा स्पीडी ट्रायल होगा नहीं बच सकेंगे, कोई भी रास्ता नहीं निकलेगा। अब मेरे ऐसा किसी लॉयर से बात है तो उन्होंने कहा थी कि हम भी जो क्रिमिनल है उसको भी जस्टिस चाहिए होता है कि उसने इतनी बड़ा गुनाह किया है कि उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल जाए, सरकमस्टांसेस क्या थे या क्या थे, ये सारी चीज़ें जो आप बात करें बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ कि और चीज़ों में देखी जा सकती है जहाँ इंसानी जान का मामला है और ऐसी मजलूम जान मतलब जो खुद अपना डिफेंस नहीं कर सकती, इंसाफ को स्लो डाउन कर देना कि इंसाफ मांगने वाले थक जाए, जस्टिस डिलेड, बच्ची के माँ बाप थक जाए अदालतों के चक्कर लगा लगा के, फिर वो और रोज इस वाकये की जो है वो वहाँ पर जो है बातचीत हो उसके ऊपर कैसे हुआ, तो जाहिर है इसके ऊपर तो होना ही चाहिए कि स्पीडी ट्रायल हो और सिस्टम बन जाए। यकीन करें अगर इन चीजों पे सख्ती आने लग जाए ना तो हर कोई डरेगा इस तरह के गुनाह करने से, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब वो देखें वैन पे जो बच्चियों का, उन बच्चियों का क्या कसूर था, ड्राइवर के साथ लड़ाई थी तो बच्चियों को क्यों मारा गया? कितना बड़ा जुल्म है वो भी। आप देखें कि आपकी किसी के साथ लड़ाई है, आपने उसके ऊपर अटैक करना, ड्राइवर जो वैन का ड्राइवर, और आप टाइम क्या डिसाइड करें जब वो किसी के नन्हे छोटे छोटे बच्चों को लेकर स्कूल की जानिब जा रहे हैं, उनका क्या कसूर? ड्राइवर तो फिर जख्मी हुआ मेरा ख्याल। जी ड्राइवर जख्मी जिसको मारना था। और यार जिन्होंने बच्चे अपने भेज दिए यार, उनको क्या पता था ड्राइवर किसी से लड़ा है, उनको क्या पता ड्राइवर की किसी के साथ लड़ाई है। आप किधर जाते जा रहे हैं एज ए सोसाइटी? हम बचपन में पढ़ते थे ना माशरती आलूम, वो क्या था? हमें तो उसमें भी सही नहीं सिखाया गया, हमें तो उसमें भी नहीं बताया गया कि माशरे में रहना कैसे है, बिल्कुल सोसाइटी में किस तरह से जिंदा रहना है, हमें तो। अच्छा वैसे ये जिस तरह वो बच्ची वाला भाग है उसमें तो जो सेफ सिटी है और ये सारी चीज़ें हैं उनकी जो कवरेज है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, और ये तो रिएक्शन है ना कि वो अगर हो गया अब उसको ढूंढना है। जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त क्यों कैमरा वहाँ पे काम नहीं कर पाया, वो किस तरह हो गया मिस, इन चीज़ों को तो देखना ही चाहिए कैमरा। अब बात ये थी कि उनको भी बच्ची के जान का था कि हमारी बच्ची की जान बच जाए, लेकिन उस टाइम वाकई अगर वो थोड़ी सी बहादुरी से काम लेते में भी बच्ची चली तो गई, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक नौबत ना आती। अब जो टेक्नोलॉजी है ना ये बड़ा है कि वो कोई क्राइम जो है वो निकल जाए बंदे का, हर जगह उनकी प्रेजेंस होती है, कहीं ना कहीं उसने क्लू छोड़ा होता है। रिकॉर्ड ही निकाली, अभी भी तो पुलिस ने निकाली है ना, वो तब निकालेंगे जी, वो हिलते ही नहीं है, राइट टाइम के ऊपर करना चाहिए। और सर प्रॉब्लम ये देखिए रहीमिया खान में हमारे पुलिस वाले भाइयों पे अटैक हुआ ना, हम उनके साथ हम उनकी तकलीफ में उनके साथ उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, बहुत बुरा। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि यार जिस दिन इसकी FIR हो गई कि किसी ने एक बच्ची जो है वो एक एरिया से गायब है, यार उस SHO को नींद कैसे आ गई? हाँ जी ऐसे जब तक उसने वो ढूंढ नहीं ली। अच्छा, नहीं खैर वो अच्छा, माँ बाप अगर चुप रहे होते तो वो फिर बैनर क्यों लगाते थे बड़े? मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो पुलिस वाले रहीम यार खान में उनके साथ इनका कंपैरिजन है, क्यों वो तो फ्रंट लाइन के ऊपर है ना, ये जो SHO साहब हैं जो भी पुलिस वहां पे थी वो उनका कंपैरिजन नहीं, उनका कंपैरिजन ये है कि वो कच्चे के इलाके में और ऐसी गाड़ी मिल जाए कि बारिश और फंस जाए। यार वो किस माहौल में उन्होंने रहना, गाड़ी उनको वही चाहिए ना कि अगर कैसे भी हालात हो वो आ सके वहां से, और तो दरिया से गुजर जानी चाहिए गाड़ी। जी, तो ऐसा उनको इक्विपमेंट ही नहीं दिया उनको लड़ने के लिए। ये कहना कि जी उनको वो शहादत लिखी थी उनके नसीब में, ये वो बाद में नसीबों पे डाल देते हैं, जबकि अपने ही काम ऐसे नहीं है कि उनको कोई परफेक्ट चीज दी जाए ना। ये तो ये भी बता देना सर कि डाके इतने डाके आपके नसीब में था, ठीक है, फिर उसके बाद फिर बारिश होती है, आपकी गाड़ी फंस जाती है, फिर बाहर 11 जवान शहीद हो जाते हैं। ट्रेनिंग है यार उनकी जी, कोई गलती इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार किसी का बेटा, किसी का खामन, किसी का भाई, 11 खानदान उनसे जुड़े हुए कई खानदान, अगर उनमें से कोई मैरिड होगा तो एक एक बंदे ने 2-2 खानदान उजाड़े। बस तो ऐसे भी होते हैं बेचारों की मंगनियां हुई होती हैं, शादी होने वाली होती है, तो जाहिर है यार वो आप उन्हें तैयार क्यों नहीं, इक्विपमेंट तो देना, उस जंगल में वो अकेले खड़े हुए यार। अब ये जंगल, ये हमारा माशरा जंगल बन चुका है, सब जंगल में फिर रहे हैं। आपको खबर किस दिन पता चली है? मैं ऐसा बताता हूँ, जब टीवी पे आई कि एक बच्ची फौत हो गई, सर 6 दिन 7 दिन से वो पुलिस वाले कर क्या रहे थे? क्योंकि उनके पास और केसेस भी थे, क्योंकि उन्होंने और भी काम करना। मेरा देखें इन्वेस्टिगेशन को ना साइंटिफिक करना चाहिए, जैसे दुनिया भर में हो रहा है हाँ। तो फौरी आप वो करें, ये थोड़ी क्राइम हो जाएगा वो कोर्ट में जाएगा सजा मिल, ये एक अलग चीज है जहां पहुंच नहीं सके, लेकिन जहां आप इंसानी जान बचा सकते हैं, जहां पे रिलीफ दे सकते हैं, तो फौरी देना चाहिए। इनके पास तो सारी अथॉरिटीज होती हैं यार, अथॉरिटी नहीं है तो हम जैसे लोगों के पास नहीं है, हम लोग इन पे रिलायबल होते हैं। इन्होंने सिर्फ ये चेक करना है जनाब आपका लाइसेंस है नहीं है, बस हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि ये क्राइम इस लेवल पे चला जाए। और अब तो बहुत जा रहा है। पुलिस वाले भाई ने जो भी इस एरिया के SHO थे, जो सब इंस्पेक्टर, जो इनकी इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि ये मामला जो है वो यहाँ तक चला जाएगा कि वो बच्ची जो है वो फौत हो गई। अभी देखें उसने दिखाया इकरारुल हसन के एक प्रोग्राम में
सरगोदा से बच्ची किडनैप होती है, लाहौर आके सेल हो रही है, और जो बेचने वाले हैं वो उसके माँ बाप बने हुए हैं। मतलब कोई वाह, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले सर, बात करते हुए भी यकीन करे तकलीफ हो रही है। वैसे ये कि सेम पंजाब ने कहा था कि किस बच्चे अजाब में- और औरतें जो है रेड लाइन है मेरी। अब अच्छी खासी अल्लाह red करे, line है। अल्लाह लोग करे जो है बस पे उसको decision तोड़ी लें। जा रहे हैं रेड लाइन को। और हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर खास तवज्जो दीजिए, पूछना बाकी नहीं सब जाना छोड़ के। चाहिए, पूछना नहीं जाना चाहिए उस एसएचओ को बुला के कि बिल्कुल जब पूछें। तुम्हारे पास ये कंप्लेन आ गई, बच्ची थी यार, एक छोटी सी 5 साल की बच्ची, तुम लोग सारे थाने वाले रात करते क्या रहे? बस वो नाकों पे होंगे, बस यही हो सकता है। और इनका क्या है, ये बस 1980 वाली पॉलिसी ले रहे हैं। इस वक्त दुनिया पता नहीं कहाँ चली गई है यार। खैर इस पे तो जितना अब क्या कह सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि उनका ख्याल आपने ही रखना है। किसी पे भी एतबार ना करें, चाहे वो आपका सगा बहन भाई क्यों ना हो। अपने बच्चों को अपने पास रखें, उनको खुद प्रोटेक्ट करें। अब तो माँ बाप की भी हमें भी उस दिन डिस्कस कर रहे थे, वो जो बाप अपने बच्ची को फेंक रहा है, राबी यार में, किस जी। पे एतबार किया जाए? अब कौन है जो इस काबिल रह गया कि हम उसको बोलें कि ऐसा हो रहा है और इसको बचाओ? अभी मेरा दोस्त है ना, वो उनके कोई गए उधर ऑस्ट्रेलिया में, बता रहे ऑस्ट्रेलिया स्वीडन किसी की जगह बता रहे, तो वहाँ पे वो अपने बच्चे को लेके बाइक के ऊपर निकल गए या गाड़ी पे निकले, बेल्ट नहीं लगाई कुछ तरह, तो उसने पुलिस वाले ने रोका उनको और उनको $4000 का फाइन कर दिया। तो वो पुलिस, वो तो पाकिस्तान से गए थे, उन्होंने कहा ये क्या कौन सा मजाक है, वो कोर्ट में चले गए। तो जज ने कहा कितना फाइन, उन्होंने कहा 4000। उन्होंने पुलिस वाली को बुलाया, उनको कहा कितनी इसकी हाईएस्ट लिमिट थी, उन्होंने कहा जी 5000। तो उन्होंने कहा 5000 का क्यों नहीं किया? पुलिस वाली को $5000 का कर दिया और उस बंदे को भी 5000 कर दिया। और फिर उस औरत को बुलाया जिसका बच्चा था कि आप, उसने कहा ना मुझे, मेरी मिसेज ने कहा ये रो रहा है इसको ले जाए। तो उसने कहा आपने उस बंदे को दी, जबकि उसका शौहर है, उस बंदे को दीजिए, उसकी केयर ही नहीं कर सकता कुछ लम्हों के लिए, और उसको भी जुर्माना कर दिया। ये देखें, ये सोसाइटीज हैं, ये इसको जस्टिस कहते हैं law। ये है लॉ, यहाँ ये पे- है बच्चों की केयर। खुदा के लिए यहाँ पे भी देख लें, खुदा का वास्ता। यहाँ पे जो है हालात आपके सामने हैं जी कैसे। खैर पॉइंट यही है कि यार जितनी हो सके हिफाजत करें, वो उसी में आसानी है। अल्लाह खैर करे। सारे काम ना अली भाई वो एंड सीट पे बैठे वजीर आला या वजीर आजम ने नहीं करना। हर चीज का कोई ना कोई कस्टोडियन इस मुल्क में, इतने ऑफिसर्स को हम पाल रहे हैं, जी। हम जो टैक्स देते हैं कितने, आप देखें सेक्रेटरीट में जाएं, इनके दफ्तरों में दाखिल नहीं हुआ जाता, ये ऐसे ऐसे तोबा नाउज बिल्ला। सही है, वो भी देखें उनके पास भी इन्फॉर्मेशन। आप पॉइंट जरा समझने की, ये टेक्नोलॉजी का ये मतलब है कि आपके पास अगर 5 बंदे थे, उनके पास 10 आईज थी, वो 5 जगह प्लेस हो सकते। अब तो कैमरे लगे हुए ना, उसको जो ऑपरेट कर रहे हैं, जब वो देख रहे हैं, उनके पास क्या सिस्टम है कि आगे कैसे रिफाइन करेंगे उस चीज़ को कि यार हमने ये देखा, इस नंबर के साथ मिसाल ये नहीं जाते ही, अब वो बच्ची जा रही है, तो सारा कुछ हो सकता है करने पे आए। तो अब वो जो पुलिस वाला है जो वहाँ पे बैठा हुआ कैमरे के आगे जो ऑपरेट कर रहा है, वो भी अपनी ड्यूटी 8 घंटे करके जा रहा है। वो जो एक होना चाहिए कि यार मैं एक नेशनल ड्यूटी दे रहा हूँ। अगर क्राइम रेट नीचे आएगा तो आपके मुल्क की इंप्रेशन जाएगा ना, इसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, इसके अंदर ही लोग ट्रस्ट बनाएंगे। अगर वो सारा ही क्राइम रेट इतना ज़्यादा रहेगा हर जगह किसी का, जिस तरह वो जर्मन बंदे के साथ हुआ, तो जब ये होता है तो उससे ज़्यादा आपका बैड इमेज आता है ना। और जब लिस्ट आती है कि जी पाकिस्तान में 2024 में इतनी ज्यादती हुई, इतने किडनैप्स हुए, इतने मर्डर हुए, तो इससे कोई अच्छा रिजल्ट तो नहीं आएगा ना मेरे मुल्क के। तो हर बंदा जो है ना, वो इकबाल ने कहा था, हमारी रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से, काइंडली इस मुल्क का ख्याल करें। अल्लाह बड़ी सबको मुश्किल से अपने मिला। हिफ्ज़ अमान में रखे। ये बड़ी मुश्किल से मुल्क मिला है और ऐसे कामों से मुल्क नहीं चला करता, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।